Good morning, everyone, and I welcome you all to Vineyard Church Jamshedpur, and I hope you all are doing well. So let's start today's service. Let's move into the worship, and before we step into worship, let's take some time inviting the presence of the Lord. Come, Holy Spirit, you come, talk to us, Lord. प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम मांगते हैं। आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ना चाहते प्रभु जी। आपके अगुवाई के बिना हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। Come and talk to us, Lord. Lord, you are the Father of lights. आप उजियाले के पिता हैं, आप उजियाले के परमेश्वर हैं। प्रभु जी हर एक अच्छी चीज, हर एक तोहफा प्रभु जी आपकी ओर से है। Father of light, you delight in your children. Father of light, you delight in your children. Father of light, you delight in your children. Oh, Father of light, you delight in your children. Every good and perfect gift comes from you. Every good and perfect gift comes from you. Good and perfect gift comes from you, Father of light. Father of lights, you never change, you have no turning. Father of lights, you never change, you
have no turning. Yeah, Father of light, ever change. You have no turning. And every good and perfect gift comes from you. 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 Father of light, Father of light, Ray of light, Father of light. You never change. You have no turning. You never change. You have no turning. सचमुच में परमेश्वर, आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी मुड़ते नहीं परमेश्वर। आप निरंतर हमारे खोज में रहते हैं। आप निरंतर प्रभु जी हमें बचाने के प्रयास में रहते हैं प्रभु जी। और सब अच्छी चीजें, अच्छी वस्तुएं प्रभु जी आपके ओर से हमारे लिए एक तोहफा है। धन्यवाद प्रभु जी। हमें मदद करें कि हम आपके और नजदीकी में बढ़े प्रभु जी दिन ब दिन। धन्यवाद हो। प्रार्थना में बने रहें। आज हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। हम निरंतर प्रभु के सामने अपने घुटने टेकें, प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच बुलाएं। और ऐसी कोई भी चीज हमारे जीवन में है जो प्रभु को भाती नहीं, प्रभु को अच्छा नहीं लगता, हम उसको प्रभु के सामने रखते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को हम बुलाते हैं। आप आए, हमसे बात करें प्रभु जी। हमें अपनी उपस्थिति से भर दें। Fill us with your presence, Lord. There's nothing worth more that'll ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord.
I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that'll ever come close. Nothing can compare where I live in hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Your presence, Lord. सचमुच में प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।
आपके अगुवाई के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें सिखाएं और हमें चलाएं प्रभु जी। हमारे जीवन आपका है, ये जीवन हमारा अपना नहीं बल्कि आपका जीवन है प्रभु जी। आपने दिया हुआ है, तोहफा है। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक आदर, महिमा और सम्मान केवल आपके नाम को मिले, मांगते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु भोज में हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव इनटू द लॉर्ड्स टेबल, लेट्स मूव इनटू द होली कम्युनियन। हम अपने हृदय को निरंतर तैयार करके रखें। लेट्स continue to prepare our hearts, inviting the presence of the Lord in our midst, asking Holy Spirit to help us examine ourselves, कि हम पवित्र आत्मा से मांगें कि प्रभु आप हमें अपने आप को जांचने में प्रभु जी आप हमें मदद करें। मैं वचन से पढ़ूंगा, आप भी अपने बाइबल में खोल सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसके बाद डॉक्टर नैन्सी इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ेगी। 1 Corinthians chapter 11 verses 23 through 30। पहला कोरिन्थियों उसका 11 उसका 23 से लेके 30 तक, 23 through 30। इंग्लिश में इस तरह लिखा हुआ है, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. अब हिंदी में पहला कुरंथी 11 का 23 से 30 पद तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु जो जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने,
वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। तो हम अक्सर बात करते हैं कि जो प्रभु बोझ है वो केवल उन लोगों के लिए है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, प्रभु यीशु पे विश्वास लाया है जिसने, और प्रभु के पीछे अब चलते हैं। वो अपने पुराने जीवन को छोड़ देते हैं और प्रभु की ओर, प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह खुद ने स्थापित किया। प्रभु यीशु ने बोला कि जब तक मैं फिर ना आऊं तुम ऐसा किया करो, है ना। जब तक मैं फिर ना आऊं ऐसा किया करो। 26वां पद में ऐसे लिखा हुआ है, वर्स 26, फॉर as often as you eat this bread and drink this cup you proclaim the Lord's death till he comes। कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा नहीं आते, ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, जब तक हम क्या करते हैं कि प्रभु भोज करने के जरिए हम क्या प्रोफेस करते हैं कि प्रभु का जो मृत्यु, प्रभु का जो सैक्रिफाइस है, प्रभु ने जो भी कुछ इंसान के लिए, इंसान जाति के लिए किया, हमारे लिए किया, उसको हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने हम सबों का जो गुनाह है वो अपने आप के ऊपर ले लिया और क्रूस पे वे चढ़ गए। और उसके साथ साथ जिन्होंने भी यीशु मसीह पे विश्वास लाया, उन सब का गुनाह प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, क्रूस पे चढ़ा देता है और हमें माफ करता है। और ये किसके बलिदान से हुआ? ये केवल प्रभु यीशु मसीह के ही बलिदान से मुमकिन था और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, है ना। तो हम सबों को खास तौर पे जो भी प्रभु में चलते हैं, विश्वास रखते हैं, हमें दिन ब दिन प्रभु में अपने विश्वास को बढ़ाना है ना। हम कैजुअल नहीं हो सकते हैं अपने विश्वास को लेके, अपने फेथ को लेके हम है ना, चलता है जो चीज है, वो जो सोच है ना, जो चलता है करने वाला, वैसा नहीं होना चाहिए। हम अपने जो फेथ है उसको लेके हमें बिल्कुल दृढ़ होना है, हमें फर्म होना है, हमें उसमें और बढ़ते जाना है। वी नीड टू डेली इंक्रीज इन आवर फेथ, है ना। दिस इज व्हाट द लॉर्ड वांट्स ऑफ अस, कि वी बिकम अ मैच्योर मैन एंड वुमन ऑफ गॉड बाय द लीडिंग ऑफ हिज होली स्पिरिट इन आवर लाइव्स। हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। आप भी अपना जो रोटी और जो प्याला है उसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 24वां पद में लिखा हुआ है इंग्लिश में, and when he had given thanks he broke it and said, he broke the bread and said, take, eat, this is my body which is broken for you, do this in remembrance of me। प्रभु का देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। आप भी साथ साथ ले सकते हैं प्रभु भोज में भाग। प्रभु का देह जो मेरे लिए तोड़ा गया है। और उसके पीछे verse 25th, in the same manner he also took the cup after supper saying, this cup is the new covenant in my blood, this do as often as you drink it in remembrance of me। कि रोटी के बाद उसने प्याले को लिया और कहा, ये जो खून है ये मेरे एक नया वाचा है मेरे खून में, है ना। ये जो प्याला है एक नया वाचा है मेरे खून में, और ये तुम किया करो मेरे यादगारी में। प्रभु का जो खून तुम्हारे लिए बहाया गया। प्रभु का खून जो मेरे लिए बहाया गया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जो भी कुछ किया, प्रभु जी आप क्रूस के ऊपर आप चढ़ गए प्रभु जी हमारे लिए।
अपने आप को आपने दे दिया प्रभु जी बलिदान के रूप में, आपका शरीर को तोड़ा गया, आपका जो खून है वो बहाया गया प्रभु जी, ताकि हम अपने गुनाह से छुटकारा पा सकें अपने विश्वास के द्वारा। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें मदद करें कि हम दिन ब दिन आप में और बढ़ते जाएं, आपसे और प्रेम करना हम सीखें प्रभु जी। सारा आदर महिमा और सम्मान केवल आपके नाम को मिले। मांगते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम अभी हम शेयरिंग में आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो दिन है 5 जून 5 जून वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट दिस डे एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि आज हम देखेंगे कि प्रभु क्या कहता है अपने क्रिएशन के बारे में, है ना। आज का जो मेरा मैसेज का टाइटल है वो है स्टुअर्डशिप ऑफ द क्रिएशन, है ना। स्टुअर्डशिप मतलब जो हमें जो देखभाल करना है, प्रभु ने हमें किस लिए यहाँ पे रखा और क्या हमें निर्देश दिया प्रभु ने कि हम जो क्रिएशन है, जो अपनी पृथ्वी है, हमारा जो रिसोर्सेस है ना, हमारे जो इर्द गिर्द में जो प्रभु का जो बनाए हुए चीजें हैं, उनका किस तरह हमें देखभाल करना है, उसके ऊपर हमें केयर करना है, इसके विषय में हम आज देखेंगे। द स्टुअर्डशिप ऑफ द क्रिएशन। एक वचन से मैं शुरू करूंगा, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं जेनेसिस 2:15, उत्पत्ति का किताब 2:15। यहाँ पे लिखा हुआ है, The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर ने आदम को जो आदम का वाटिका में वहां पे प्रभु ने रखा, किस लिए? टू वर्क इट एंड टू टेक केयर ऑफ इट, उस गार्डन का देखभाल के लिए, है ना। यहाँ पे एक चीज जो काम जो परमेश्वर ने सौंपा था आदम को, क्या था कि उस आदम की वाटिका को देखभाल करना है। तो गॉड क्रिएटेड ऑल ऑफ इट, है ना। मतलब सारे सृष्टि में हम देखते हैं हर एक चीज वो प्रभु ने रचा। इट्स फ्लोरा, इट्स फौना, जो कि जानवर है या जो भी प्लांट्स है, ट्रीज है ना, द इकोसिस्टम, है ना। सब चीज किसने रचा? प्रभु ने रचा। और उसके पीछे प्रभु ने क्या एक साइकिल रखा हुआ है ना, कि कैसे प्लांट ग्रोथ होता है, हाउ द प्लांट ग्रोस एंड सीड बेयरिंग, है ना। वहां पे वो प्लांट ग्रो करके वो इट बेयर्स सीड्स, है ना। द साइकिल्स ऑफ डे एंड नाइट, है ना, रात और दिन किस तरह बनता है। द साइकिल्स ऑफ रेन एंड ड्राइंग, है ना, किस तरह बारिश होता है, किस तरह सूखा पड़ता है। हर एक चीज क्या है, वो प्रभु के शब्द से निकला है। वो प्रभु ने सृष्टि सबको बनाया है, प्रभु ने, है ना। तो अक्सर सिर्फ यही चीज नहीं, कोई भी चीज हम देख सकते हैं, ये क्रिएशन हो और ये इस क्रिएशन में जो भी प्रभु ने हमें है ना आर्थिक चीजें दिया है, जो माल हमें दिया हुआ है, जो हमारे जो पोजीशंस है, हर एक चीज प्रभु की ओर से है। हम अक्सर समझने लग जाते हैं ना कि हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो पैसा है, हमारा जो माल है, वो हमारा है ना। मगर प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता। प्रभु का वचन कहता है हर एक चीज प्रभु का है। इट ऑल बिलोंग्स टू हिम, नॉट टू अस। ठीक है, हर एक चीज जो हमारे पास है वह प्रभु का है ना। गॉड इज द ओनर एंड सस्टेनर ऑफ द अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट, कि प्रभु हर एक चीज का मालिक है।
और उसको चलाने वाला, ही इज द सस्टेनर ऑफ द अर्थ, है ना। इस दुनिया को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और हर एक चीज जो इस दुनिया में है उसको चलाने वाला कौन है? वे परमेश्वर है। All that we have and all that we receive is from the earth belongs to God. हर एक चीज जो इस दुनिया में हमारे पास है, हमारे पास हो सकता है हम जमींदार हो, हमारे पास बहुत सारे जमीन है ना, हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं, घर हो सकता है ना। हर एक चीज जो हमारे पास है इस दुनिया में वे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। हम अक्सर हमारा जो सोच होता है कि हम इस तरह चीजों को दुरुपयोग में लाते हैं सोच के कि ये तो मेरा है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं इसके साथ, है ना। ऐसा परमेश्वर हमें नहीं सिखाता, है ना। वी आर द स्टूवर्ड्स नॉट ओनर्स। हम क्या है? देखभाल करने वाले हैं। वी आर नॉट द ओनर्स, हम मालिक नहीं है। एंड आर केयर ऑफ क्रिएशन इज अ रोल डेलीगेटेड टू अस बाय गॉड, है ना। और हमारा जो रोल है कि हम इस सृष्टि का, इस क्रिएशन का देखभाल करें, वे प्रभु ने इस रोल को हमें दिया हुआ है ना। ये प्रभु ने हमें इस रोल को हमें दिया है कि तुम अपने जो सृष्टि है जो मैंने बनाया है उसका तुम देखभाल करो, प्रभु ने ये कहा, है ना। Thus, our relationship to the earth should be God-centered rather than self-centered. इसलिए हमारा जो रिश्ता है इस क्रिएशन के साथ, इस अर्थ के साथ, वह प्रभु उसके बीच में होना चाहिए। हम उस सब चीजों के बीच में हम अपने आप को नहीं रख सकते, अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते। हम केवल और केवल प्रभु को बीच में रख के आगे चल सकते हैं और प्रभु को महिमा देना हर एक चीज के लिए। जो भी कुछ हमारे लिए हमारे पास है वह प्रभु की ओर से है, वह प्रभु का है। वो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उस चीज का देखभाल कर सकें। और इन सभी चीजों में द लॉर्ड शुड बी एट द सेंटर, है ना। इट शुड बी गॉड सेंटर्ड रादर देन सेल्फ सेंटर्ड, कि हम अपने आप को बीच में रख के मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये जमीन मेरा है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, ये पैसा जो मेरे पास है मैं कुछ भी करके इसको उड़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। प्रभु ने हर एक चीज हमें दिया है ताकि हम सब चीजों को देखभाल करें और सोच समझ के खर्च करें, है ना। और आज के जब 5 जून जब ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है ना, लोग यहाँ इसको प्रकृति का दिन के रूप में मनाते हैं। तो अक्सर हम भूल जाते हैं ना कि हम अपनी इर्द गिर्द में ही हम क्यों ना देखें। लोगों को फर्क नहीं पड़ता है ना, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी आप घूमने चले जाएं, प्रभु का सृष्टि इतना सुंदर प्रभु ने बनाया, मगर इंसान क्या करता है? उसको पल्यूट करता है ना। हम कहीं पे भी चले जाएं, पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं या नदी के किनारे चले जाएं या मार्केट निकल जाएं या अपने आस पड़ोस में देखें, है ना। अपने घर में ही क्यों ना देखें, अपने आंगन में ही क्यों ना देखें। इंसान को किस चीज में मजा आता है? गंदगी फैलाने में मजा आता है ना। फर्क नहीं पड़ता है ना। बहुत कम लोग हैं जिसको फर्क पड़ता है और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब लोग ऐसा करते हैं, है ना। क्या इंसान का जवाब क्या होता है जब कोई अगर बोले कि गंदगी ना फैलाएं? तो इंसान का जवाब होता है कि क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, एवरीवन डज इट, है ना। सब लोग तो कूड़ा फैलाते हैं, मैं ना फैलाऊं तो क्या फर्क पड़ता है ना। इस सोच को हमें बदलना है। प्रभु का वचन कहता है कि इस जो जगत में जो सारी चीजें जो प्रभु ने रचाया है उस चीज को देखभाल करने के लिए हमें यहाँ पे रखा प्रभु ने, है ना। हमारा एक काम क्या है? प्रभु को महिमा देने के साथ साथ, प्रभु के नाम के महिमा देने के साथ साथ एक हमारा काम है कि हम प्रभु के बनाए हुए चीजों को देखभाल करें। जो प्रभु ने हमारे अथॉरिटी के अंदर दिया है, जो प्रभु ने हमें सौंपा है, उस चीज को हम दुरुपयोग में ना लाएं, है ना। हमारे प्रभु की सृष्टि का देखभाल करना एक हमारा एक्ट ऑफ वर्शिप है प्रभु को, है ना। कि प्रभु जी ये जो चीजें आपने मुझे दिया है
या ये जो जमीन जायदाद मेरे पास है, इसको मैं देखभाल करूंगा क्योंकि आपने मुझे ये सौंपा है और इस चीज से आपके नाम की महिमा हो सके, है ना। तो हमें खास तौर पे बहुत सतर्क रहना है, माइंडफुल रहना है कि हम अपने आसपास या अपने प्रॉपर्टी में या है ना, जहाँ पे भी हम घूमने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स में, और लोग जैसा भी करें, हमें उनके काम करने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर हमें फर्क पड़ना चाहिए प्रभु क्या चाह सोच बतलाता है हमें, है ना। अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो हम उसको उनको बोल सकते हैं कि ऐसा ना करें, उनके उनको, है ना, उनको दिखाने, उनको उनके लिए हम उनके साथ मिलके उस चीज का सफाई कर सकते हैं कि गंदगी ना फैलाएं, आए हम इस चीज को मिलके साफ कर लें, है ना। एक एक प्रभु की ओर से हम उनको मैसेज दें और हम अपने कानों को प्रभु के तरफ खुला रखें कि प्रभु आप मुझे सिखाएं कि मैं किस तरह इस चीज को लोगों तक बतलाने में मैं बोल सकता हूँ, आपका पवित्र आत्मा मुझे सिखाएं, है ना। तो हम सबको नहीं बदल सकते हैं, मगर हम खुद को बदल सकते हैं, है ना। वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू चेंज, है ना, बट व्हाट हु वी कैन चेंज इज आवरसेल्व्स। जहाँ पे भी हम जाते हैं, हम अपने इर्द गिर्द का, हम अपने जो प्रभु का जो क्रिएशन है, इस दुनिया का ख्याल रख सकते हैं। ये किससे शुरू होता है? ये मेरे से शुरू होता है, आपसे शुरू होता है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवरसेल्व्स। अपने प्रॉपर्टी का किस तरह हम ख्याल रखते हैं, दुरुपयोग में ना लाते हैं, अपने पैसों का किस तरह हम ख्याल रखते हैं, है ना। और इससे फिर आगे आगे जाके हम बाहर जब घूमने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हम कहीं पे भी जाएं तो उस जगह का दुरुपयोग ना करें, सब चीजों को हम संभालें, साफ करें, है ना। तो ये है जो प्रभु हमें हमसे चाहता है कि टेक केयर ऑफ द क्रिएशन, है ना। जिस तरह प्रभु ने आदम के वाटिका में आदम को रखा, एडम को रखा, और उसने बोला कि तुम इसमें काम करो और इस वाटिका का तुम ख्याल रखो। तो ये दुनिया क्या है? हमारे लिए एक वाटिका है, एक गार्डन है प्रभु ने दिया हुआ, है ना। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। हम अगर इसी दुनिया को हम अगर दुरुपयोग में लाएंगे, इसको खराब करेंगे, जिससे प्रभु होने देता है कि हम इसमें से इसमें मेहनत करें, फल उगाएं, है ना, खाना उगाएं। अगर इसी चीज को हम दुरुपयोग में लाएंगे, पानी जो है उसको खराब करें, तो एक समय आएगा जब हम इस जो दुनिया है, जो इतना अच्छा दुनिया प्रभु ने हमें दिया, उस चीज को अगर हम खराब करेंगे तो एक समय आएगा कि ये जो सारी अच्छी चीजें हैं वे खराब हो जाएंगे और हमें सेवन करने के लिए, हम खाने के लिए और पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, है ना। क्योंकि ये तो एक प्रभु का देन है हमारे लिए कि हम इस चीजों का हमें ख्याल रखना है ना। वी शो ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू गॉड इन द वे वी ट्रीट दिस हिज अर्थ, है ना। हम प्रभु को आदर और महिमा देते हैं बाय द वे, है ना, द वे वी ट्रीट दिस अर्थ, है ना, कि किस तरह हम इस दुनिया को हम चलाते हैं, है ना। उसके द्वारा हम अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं, है ना। इट इज गॉड्स क्रिएटेड वर्ल्ड, ये प्रभु का बनाया हुआ दुनिया है। एंड वी हैव बीन गिवन द प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, एंड स्टूवर्डशिप, है ना। इसके साथ साथ प्रभु ने हमें क्या दिया कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि हम इस दुनिया का देखभाल करें। हम और वचन से पढ़ेंगे आगे। आप कोलोसियों का किताब 1 उसका 16 निकाल सकते हैं। कोलोसियों का किताब 1 उसका 16, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16। इसमें लिखा हुआ है, फॉर इन हिम ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him, है ना। ये यीशु मसीह के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक चीज का सृष्टि किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया, है ना। आसमान में हो, स्वर्ग में हो, या धरती पे हो, पृथ्वी पे हो,
जो चीज दिखाई देती है, जो चीज दिखाई नहीं देती है, हर एक चीज है ना, वेदर थ्रोन्स और पावर्स है ना, जो सिंहासन हो, जो ताकत हो, जो चलाने वाले हो, जो है ना अथॉरिटी में, लीडरशिप में जो बैठे हैं, एवरीथिंग है ना, ऑल थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड थ्रू हिम। परमेश्वर ने सब चीजों की सृष्टि की। एंड किस लिए सृष्टि की, किसके लिए? एंड फॉर हिम, कि परमेश्वर के नाम की आराधना हो सके, परमेश्वर के नाम की बढ़ोतरी हो सके, इसीलिए परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया है ना। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अर्थ एंड इट्स क्रिएचर्स इज टू ग्लोरीफाई गॉड, है ना, कि परमेश्वर के नाम की आराधना कर सके, हर एक चीज परमेश्वर के नाम की आराधना कर सके। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का हमें सृष्टि करने का, इस दुनिया को सृष्टि करने का मकसद क्या है? कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर के नाम के गीत गाएं, परमेश्वर के नाम की स्तुति गाएं। ये मकसद है ना। तो हम और एक वचन देखेंगे, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 4:11, रेवलेशन 4:11, यहाँ पे लिखा हुआ है, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, You are worthy, our Lord and God, कि है परमेश्वर पिता, है परमेश्वर, तो इस योग्य है, किसकी योग्य है? टू रिसीव ग्लोरी एंड ऑनर एंड पावर, कि सारा आदर, महिमा और सम्मान वो तेरे योग्य है प्रभु जी, क्योंकि तूने हर चीजों की तूने सृष्टि की। यू हैव क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड बाय योर विल दे वर क्रिएटेड। क्यों? कि तू इस सृष्टि को बनाना चाहता था, है ना। योर विल दे वर क्रिएटेड, तूने चाहा और ये इस चीजों की सृष्टि हुई, ये चीज बन गए, है ना। एंड हैव देयर बीइंग, और वे स्थापित हुए, वे चीजें बन गए, ठीक है। और ये सारी चीजों का जो भी परमेश्वर ने सृष्टि की, उन सब का क्या पर्पस है, उद्देश्य क्या है? टू ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना करे, है ना। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन में दूंगा, एग्जाम्पल, है ना। व्हेन यू गो टू अ होटल, ठीक है, अगर आप किसी होटल जाते हैं, यू माइट गिव योर बैग टू अ स्टूवर्ड, है ना। होता है जब हम किसी होटल जाते हैं तो एक हेल्पर आता है ना, होटल का एड आता है, जो कि हमारा बैग लेता है रिसेप्शन पे, है ना। who takes है ना, a steward who takes your bag to your room, हमारा जो बैग है वो हमारे लिए जो रूम दिया जाता है उसमें ले जाता है, बट दे आर नॉट हिज बैग्स, है ना। मगर वे जो सामान है, वो जो लगेज है, बैग है, वो हम उसको देते हैं रूम तक पहुंचाने के लिए, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि वे बैग जो है वो अब उस आदमी का या उस स्टूवर्ड का हो गया है ना। तो वी एंट्रस्ट, है ना, we trust that person that he will take the bag to the room, to our room, है ना। तो यहाँ पे fundamental principle of stewardship is that God is the owner of all, है ना। जिस तरह जब हम होटल जाते हैं, हम अपना बैग उस आदमी को देते हैं जो सामान अपने रूम तक पहुंचाता है, उस आदमी को जब हम दे देते हैं, उसका काम क्या है? उस बैग का देखभाल करना और उस कमरे तक पहुंचाना जिस कमरे में हम रुकेंगे। उसी तरह ये दुनिया प्रभु ने हमें सौंपा है ना। इस दुनिया की सारी चीजों को देखभाल हमें करना है, मगर इस दुनिया का मालिक कौन है? वह है परमेश्वर। हमारे पास कोई भी प्रभु की ओर से माल हो सकता है ना, प्रभु ने हमें ब्लेस किया हो सकता है, हमारे पास हो सकता है जमीन जायदाद है, हमारे पास हो सकते हैं घर है, हमारे पास बहुत सारे पैसा हो सकता है, मगर इन सारी चीजों का जो ऑनर कौन है? वो है परमेश्वर। परमेश्वर मालिक है।
हम तो सिर्फ उस चीजों का देखभाल कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें सौंपा है ना। ही इज द ओनर, आई एम द मैनेजर, कि वे मालिक है, मैं सिर्फ इस चीजों को चलाता हूं, देखभाल करता हूं। एवरीथिंग आई हैव टुडे कम्स फ्रॉम गॉड। कुछ भी चीज, कोई भी चीज जो मेरे पास आज है वे परमेश्वर का है। इट इज हिज, आई ओन नथिंग। ये उसका है, मेरा अपना कुछ नहीं है ना। दाऊद कहता है, किंग डेविड, वो कहता है कि द हेवेंस आर योर्स एंड योर्स ऑल्सो द अर्थ, यू फाउंडेड द वर्ल्ड एंड ऑल दैट इज इन इट, है ना। कि आसमान जो स्वर्ग है वे तेरा है परमेश्वर, और ये पृथ्वी भी तेरा है, और तूने सब चीजों का जो इस दुनिया में है उसका सृष्टि तूने किया। यू फाउंडेड द वर्ल्ड, इस दुनिया को और सभी चीज जो इस दुनिया में है ये प्रभु ने बनाया। सैम 89:11 है ना, भजन संगीता 98 उसका 11 है ना, दैट ही इज द ओनर, आई ओन नथिंग, आई एम जस्ट अ स्टूवर्ड, एक देखभाल करने वाला। आई एम द मैनेजर, आई एम मेरली द मैनेजर, मैं मालिक नहीं हूं सब चीज का। हमें प्रभु के सामने सभी चीज को ला के रखना है कि प्रभु जी धन्यवाद आपका कि ये सारी चीज मेरे पास हैं, और मुझे सिखाएं परमेश्वर मैं किस तरह इन चीजों का देखभाल करूं, है ना। हमें मिसयूज नहीं करना है किसी भी चीज का, ठीक है ना। तो और एक वचन हम देखेंगे, ड्यूटोनॉमी उसका 8 उसका 17 और 18। ड्यूटोनॉमी 8:17-18, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मे से टू योर सेल्फ, माई पावर एंड माई ओन एबिलिटी हैव गेन्ड दिस वेल्थ फॉर मी, बट रिमेंबर दैट the Lord your God gives you the power to gain wealth in order to confirm his covenant he swore to your fathers as it is today, है ना। ड्यूटोनॉमी 8 उसका 17 और 18। यू मे से टू योर सेल्फ, कि तुम अपने आप को ये चीज बोल सकते हो, द पावर, माई पावर एंड माई ओन एबिलिटी हैव गेन्ड दिस वेल्थ फॉर मी, कि मेरी अपनी ताकत और मेरी अपनी योग्यता ने ये सारा माल जायदाद इकट्ठा किया हुआ है। बट रिमेंबर दैट द लॉर्ड योर गॉड गिव्स यू द पावर टू गेन वेल्थ, कि याद रखो कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें ताकत दिया कि तुम इस वेल्थ, इस माल का इकट्ठा कर सको, इन ऑर्डर टू कंफर्म हिज कवनेंट ही swore to your fathers as it is today, जिस तरह तुम्हारे पिता से, है ना, तुम्हारे पिताओं से परमेश्वर ने ये वायदा किया, है ना, इस वाचा को बांधा, है ना। इसी तरह आज भी परमेश्वर हमसे वाचा बनता है। इसी तरह आज भी परमेश्वर हमें चीजों को देता है, किस लिए? कि हम उसका दुरुपयोग ना करें, बल्कि हम सभी चीजों में परमेश्वर के नाम की को महिमा दें और सब चीजों का सही रीति में हम इस्तेमाल करें, है ना। As a manager, as a steward, we have a divine responsibility. If God is the owner, then I am the manager whom he has trusted with his property. अगर परमेश्वर ओनर है, परमेश्वर मालिक है, और मैं अगर देखभाल करने वाला हूं या चलाने वाला हूं, तो परमेश्वर ने मुझ पे विश्वास किया है कि मैं उसके जो प्रॉपर्टी है, उसका जो सृष्टि है, उसका जो क्रिएशन है, उस चीज उसको अच्छे से देखभाल करूं। I must learn to think therefore like a manager, कि मुझे और आपको एक मैनेजर के रूप में चीजों को देखना शुरू करना है।
एक ऑनर के रूप में नहीं, एक मालिक के हैसियत से नहीं, बल्कि एक देखभाल करने के हैसियत से हमें चीजों को देखना है। हमारे पास जो भी कुछ है, हम उसको अपनी दृष्टि बदलें और उस चीज को देखें कि ये प्रभु की ओर से मुझे दिया गया कि मैं इस चीज का देखभाल करूं, है ना। अ मैनेजर ओवरसीज द ओनर्स एसेट्स, है ना, फॉर द ओनर्स बेनिफिट, कि परमेश्वर है ना, एक जो मैनेजर होता है वह मालिक के दिए हुए चीजों का देखभाल करता है और कि इस चीजों से मालिक का बेनिफिट हो, मालिक को फायदा पहुंचे। तो हमारा ये होना कि हम सब चीजों से, जो भी हमारे पास है, सब चीजों से हम परमेश्वर के नाम की महिमा दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, है ना। हमारे काम करने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, हमारे चाल चलन का ढंग, सभी चीज जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर के जो बताए रास्ते पे हम चलते हैं, तो इन चीजों से क्या होता है, परमेश्वर के नाम को बढ़ोतरी मिलता है। परमेश्वर इन चीजों से खुश होता है कि हम किस तरह चलते हैं, किस तरह चीजों का देखभाल करते हैं, है ना। द जॉब ऑफ अ मैनेजर इज टू फाइंड आउट व्हाट द ओनर वांट्स, है ना, व्हाट द ओनर वांट्स। हमारा काम यह है कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु हमें जो माल दिया है, प्रभु ने जो हमें पैसा दिया है, प्रभु से हम मांगे कि प्रभु जी हम किस तरह इस पैसे का इस्तेमाल करें, अपने जमीन, अपने घर का किस तरह हम इस्तेमाल करें। प्रभु जी हम कुछ भी ऐसा काम में ना लग जाएं जो आपको पसंद ना आए। और खास तौर पे आज जो एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं, खास तौर पे हम अपने रिसोर्सेस का, अपने एनवायरनमेंट का, अब इस परमेश्वर की सृष्टि का हम दुरुपयोग ना करें, हम सब चीज को संभालें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ पे इस पृथ्वी पे रखा है कि इस पृथ्वी को खराब करने के लिए नहीं रखा है, इस पृथ्वी का हम देखभाल करें इसलिए रखा है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, सब लोग तो गंदगी फैला रहे हैं, मगर ये आपको खुद को बदलना है पहले, लोग कुछ भी करें। जब आप खुद बदलेंगे तो लोग आपको देखेंगे, है ना। और दूसरे को बदलने का काम हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। मगर हम अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को टटोल सकते हैं कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे गलत हैं, और ये परमेश्वर हमें अगुवाई करता है इस चीज में। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक शेयर करूंगा। आई होप दिस स्पोक टू यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा, है ना। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। लेट्स ऑल मूव इनटू प्रेयर। जी, धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए, धन्यवाद देते हैं इस पृथ्वी के लिए। प्रभु जी आपने जिस इस पृथ्वी को आपने रचाया, सारे जीव जंतुओं को आपने बनाया प्रभु जी, आपने हमें भी बनाया प्रभु जी, और हमें ये अधिकार दिया कि हम इस पृथ्वी का देखभाल करें प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें सिखाएं कि हम जो भी चीजें आपने हमें बख्शा है, आपने हमें जो दिया है, हम किसी भी चीज का दुरुपयोग ना करें प्रभु जी, बल्कि हर एक चीज का हम सही रीति से काम चीजों को काम में लाएं, जिस तरह आप चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक चीज के बीच में आप परमेश्वर ठहरे प्रभु जी। लॉर्ड दिस क्रिएशन इज formed by you, Lord. You have created this creation. प्रभु जी हम शैतानी बातों में घूम के हम इस रीति में ना गिरें कि हम इस क्रिएशन को पूछने लग जाएं। Help us to only lift our eyes towards you, Lord, the Creator, जिसने सारी चीजों की सृष्टि की। हम आपको पूजें, आपके नाम के आगे सर झुकाएं, आपके घुटने में अपना सर झुकाएं, आपके नाम की स्तुति आराधना करें प्रभु जी। और जो ये सृष्टि है वे आपका स्थान कभी भी नहीं ले सकता, ये आपके द्वारा है प्रभु जी।
Help us to never, never, Lord, give your place to this creation. But Lord Father, you tell us, Lord, to take care of it. मगर हम इस सृष्टि का देखभाल करें, आप हमें कहते हैं. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद हो प्रभु जी. सारा आदर, महिमा और सम्मान केवल आपके नाम को मिले. मांगते हैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. आइए हम आशीष की प्रार्थना करें, फिर समाप्त करें. धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद. अब परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ आज से हमेशा तक होती रहे. आमीन.